ہمارے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، فرشتے لے کر کے جائیں گے، مولا پچھلے سال 15ویں شعبان سے لے کر اس سال کے 14 شعبان تک ان لوگوں نے یہ سارے کام کیے، اب تمہیں پتا ہے، اللہ کو پتا ہے کیا کیا کیے، تم نے کتنی نمازیں چھوڑی وہ بھی لکھا ہوگا، کتنے روزے تم نے رمضان میں پچھلے مس کیے وہ بھی لکھا ہوگا، کتنے زکوٰۃ دبا کر کون بیٹھا ہے وہ بھی لکھا ہوگا، کتنے تم نے لوگوں کے مال کھائے وہ بھی لکھا ہوگا، کتنوں پر غلط نگاہ ڈالی وہ بھی لکھا ہوگا، کتنوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے وہ بھی لکھا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں تو اس میں لکھی ہوئی ہیں، اور اسی حالت میں اب یہ جانے والے فرشتوں کے ہاتھوں اللہ کی بارگاہ میں رپورٹ جا رہی ہے، تم 1000 چلاؤ رپورٹ تو جائے گی، کیونکہ فرشتے وہ نہیں ہیں جو رشوت لے کر رپورٹ بدل دے، ہاں انکم ٹیکس والے نہیں ہیں، وہ اللہ کے فرشتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ نے جس بات کا انہیں حکم دیا اس میں ایک رتی برابر وہ نافرمانی نہیں کرتے، جس بات کا انہیں حکم دیا گیا وہی کرتے ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی کے پکے ہیں، لے کر جائیں گے، ابھی سب کے اعمال لے کے جائیں گے، پیچھے گھوم کر کے دیکھ لو سال بھر میں کیا کیا کیے ہو، تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہوگا کس مہینے میں کیا کیا عمل ہوئے ہیں۔ بھول جاتے ہو تو یہ اور ایک بڑا عذاب ہے، اگر گناہ کر کے بھول جاتے ہو تو یہ اور ایک بڑا عذاب ہے، یاد رکھو گے تو آگے کی زندگی اچھی ہو سکتی ہے، لیکن اب رپورٹ جا رہی ہے، ایک کام کر سکتے ہو، رشوت تو نہیں دے سکتے انہیں، کسی طرح کی لالچ بھی نہیں دے سکتے فرشتوں کو، اے فرشتوں میری یہ چیز چھپا دینا، یہ چیز چھپا دینا، کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک چیز ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ اگر تم کرو گے تو برائیوں پر پانی پھیر دیا جائے گا۔ ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ بات ہے، آپ سے پوچھا گیا موت کے آنے کے انداز الگ الگ ہیں، آپ نے کہا ہاں، کہا کیسے؟ کہا مومن کی روح اور کافر کی روح نکالنے میں فرق ہے، ایک کافر کی اور ایک بدبخت کی گنہگار کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے کانٹوں کی جھاڑی پر ریشم کا کپڑا ڈال کر کھینچو، ریشم کا کپڑا، سلک کا کپڑا ڈال کر کانٹوں کی جھاڑی پر جب کپڑا کھینچیں گے تو اس کے تار کس طرح نکلتے چلے جائیں گے، روح نکلنے کے وقت اس کو ایسا لگے گا ناخن سے اس کی روح نکالی جا رہی ہوگی، شدت کا درد ہوگا۔ اور پھر آپ سے پوچھا گیا مومن کی روح کیسے نکالی جاتی ہے؟ کہا ایسے جیسے میدے کے گندھے ہوئے آٹے میں بال پھنساؤ تو نکال لیا جاتا ہے، ایک بال گندھے ہوئے آٹے میں پھنسا ہو تو اس کو نکالنے میں کیا محسوس ہو، نہ بال کو پتہ چلے نہ آٹے کو پتہ چلے، تو آپ کے ہاتھ میں ہے کس طرح دنیا سے جانا چاہتے ہو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کچھ وہ لوگ ہیں جن کے مرنے سے پہلے ان کے کانوں میں یہ آواز آتی ہے، اے پاکیزہ جان کے مالک آ جا اپنے رب کی طرف خوشی خوشی، اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اور حدیث پاک میں ہے کچھ گنہگار ایسے ہیں جن کے مرنے سے پہلے کانوں میں آواز آتی ہے یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے برے جان کے مالک اخرجی من الجسد الخبیث، گندے جسم سے نکل جا، اللہ کا یہ حکم ہوتا ہے گندے جسم سے نکل جا اور میرے بندوں سے دور ہو جا، جہنم میں داخل ہو جا۔ اور وہ اس آواز سے ہی تڑپ جاتا ہے، چہرہ بدل جاتا ہے، موت کے وقت جو ڈر طاری ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، شعبان المعظم کا مہینہ اور عنقریب وہ رات آنے والی ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، جس کے متعلق قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت کا تعلق اس 15ویں شعبان کی رات سے ہے۔ بہرحال اتنی بات تو سارے لوگوں کو پتا ہوگی کہ اب ہمارے زندگی کا ایک باب 14ویں شعبان کو بند ہو جائے گا اور 15ویں شعبان کو ہمارے نئے سال کے تمام معاملات کا دروازہ پھر سے کھولا جائے گا۔ یعنی اس رات کو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر تمام معاملات کا حکم نازل فرماتا ہے کہ فلاں بندے کے ساتھ سال بھر میں کیا کیا ہونا ہے۔ اس سے پہلے کہ نئے سال میں ہمارے لیے کیا کیا ہونا ہے، یہاں تک کہ یہ تک حکم آ جاتا ہے کہ کتنے لوگ پیدا ہوں گے اور کتنے لوگ دنیا سے جانے والے ہوں۔
कई लोगों के मुतालिक हदीस पाक में है, उस रात उनका फैसला हो चुका होगा कि अब ये दुनिया से जाने वाला है, लेकिन वो बंदा अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ होगा। किसी के मौत का परवाना जारी हो चुका है लेकिन वो अपने घर बनाने में मसरूफ होगा, वो अपने कारोबार के तरक्याती कामों में मसरूफ होगा, उसे अंदाजा तक नहीं होगा कि उसका फरमान निकल चुका है। लेकिन उससे पहले की एक बात कि 15वीं शाबान को हमारे मुतालिक क्या क्या अहकामात नाजिल होंगे, ये साल शुरू होने पर है। लेकिन उससे पहले कि हमारे आमाल जो पेश होंगे अल्लाह की बारगाह में साल भर के, इस सिलसिले में तो अब हम गौर कर सकते हैं। इसलिए कि ये भी फरमाया गया कि खात्मे पर सब कुछ दारो मदार है आमाल का। जो आप लोग सुनते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन, लेकिन यहां पर उसके बरक्स है, लास्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। जिंदगी के आखिरी वक्त जो अमाल हैं उन्हीं का एतबार होगा। तुम्हारे जिंदगी का दरवाजा बंद होने से चंद सानिये पहले जो तुम कर रहे थे उसका एतबार होगा। इसीलिए फरमाया गया, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने किसी को जन्नती लिखा है, किसी को जहन्नमी। लेकिन होता यह है कि एक बंदा नेक काम कर रहा है, जिंदगी भर अच्छे अमाल करता रहता है, लेकिन उसके मुतालिक लिखा गया कि जहन्नम में जाने वाला है। होता कैसे है? फरमाया गया, मौत के आने से चंद दिनों पहले या चंद लम्हों पहले वो ऐसे गंदे कामों में मसरूफ हो जाता है जो जहन्नम की तरफ ले जाते हैं। उन्हीं कामों में उसकी मौत होती है और खात्मे पर ही सब कुछ दारो मदार है, फिर उसे दोज़ख की तरफ ले जाया जाता है। और किसी के मुतालिक अल्लाह ताला ने जन्नती लिखा है, जबकि उसके काम बुरे थे, जिंदगी में अजब अजब काम किया करता था। ये कैसे? फरमाया गया कि वो बुरे कामों में मसरूफ तो रहता था, लेकिन मौत से पहले अचानक वो अल्लाह की तरफ आ गया, मस्जिदों की तरफ आ गया, ये महफिल में बैठने लग गया, और इसी असना में उसकी मौत हुई। तो आखिर में जो कुछ करता था उसी का एतबार किया जाएगा और उसे जन्नत भेज दिया जाएगा। मेरे अजीजों, अब 15वीं शाबान से पहले मेरे ख्याल से 4 या 5 दिन बचे हैं। इस साल जो कुछ भी गुजरा है, इस पर अब एक दरवाजा बंद होगा और अल्लाह की बारगाह में इस साल की किताब पेश होगी। यानी शमसी साल के एतबार से, अंग्रेजी महीनों के एतबार से 2022 और 23 इनकम टैक्स का हिसाब ऐसे ही चलता है, 20-21, 21-22, 22-23, इस तरह से आपका 22 और 23 का हिसाब 4 दिन के बाद अल्लाह करीम की बारगाह में जाने वाला है। साल भर क्या क्या किया, इसका एहतसाब भी जरूरी है। अगर खुद से कैलकुलेट करोगे तो फ्यूचर तुम्हारा, मुस्तकबिल अच्छा हो सकता है। अगर एहतसाब नहीं करोगे तो पुरानी गलतियां वैसी की वैसी रह जाएंगी और उसी पर तुम आगे इमारतें बढ़ाते चले जाओ। एहतसाब औलिया कामिलीन की महफिलों की एक खास तरबियत का नाम है, एहतसाब। यानी आप आगे के ईंट रखने से पहले पीछे एक बार देख लो कि मुझसे खताएं कहां कहां हुई हैं, गलतियां किन किन बातों पर हुई हैं, और इसी को कहते हैं एहतसाब। ये 4 दिन जो आपके पास बचे हैं इस एहतसाब के लिए बहुत उम्दा है। और फिर हो सके तो जैसे हमारे बुजुर्गों का मामूल है, हम 14 शाबान को भी 15 शाबान को भी रोजा रख लेते हैं। वजह क्या है? बाज लोग खामखा हमसे बहस कर रहे हैं, इसकी दलील कहाँ है, उसकी दलील कहाँ है, ये कहां से साबित है, वो कहां से साबित है। इनको शब बारात के रोजों के मुतालिक बड़ी अजीब सी बात है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारी तमन्ना ये है कि हमारे आमाल जब अल्लाह की बारगाह में जा रहे हों 14 शाबान को, उस वक्त भी हम रोजे के आलम में हो, और जब हमारा नया साल शुरू हो रहा हो उस वक्त भी हम रोजे के आलम में हो। क्या ये बेहतर तरीका नहीं है? इसीलिए बुजुर्गों का मामूल रहा कि इस साल जो भी चला, जैसा भी गया, गुजरा तो है, लेकिन आखिर वक्त कुछ ऐसे अमाल कर लो कि अल्लाह की बारगाह में जब ये पेश हो तो तुम्हारे लास्ट इंप्रेशन को देखा जाए।
तुम्हारे आखिरी अमाल को देखा जाए कि आखिर में ये क्या करता था, और हो सकता है उस आखिरी अमल की बदौलत अल्लाह ताला पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे। आज चूंकि ये जो महफिल जिक्र है रमजान से पहले की, शायद ये अब आखिरी है, मैं सफर पर रवाना हो रहा हूं, इसमें अगली 2 महफिलें हमारी नहीं आ पाएंगी। रमजानुल मुबारक से फिर इंशाल्लाह होगी, लेकिन आज मेरे आने की खास एक वजह यही थी, जबकि मैं मुसलसल सफर में हूं, इसी वजह से मैं आज यहां पर आया कि मैं खुद अपने लिए भी और सबके लिए भी 15वीं शाबान से पहले पहले एक ऐसी महफिल करें कि जो हमारे इस गुजरे हुए साल के ऊपर एक ऐसी मोहर लग जाए कि अल्लाह इस महफिल की बरकत से हमारे पिछले गुनाह माफ फरमाए। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, मैं बस मुख्तसर सी बात अर्ज करूंगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, दौड़ो अल्लाह की तरफ, फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़े दौड़े आ जाओ। साबिqू इलल खैरात, नेकियों की तरफ दौड़ भाग करो, जितना हो सके भागो। सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन में इस बात का तो कंपटीशन होता था, वो नेकियों में सबकत ले जाने के लिए एक दूसरे के आगे बढ़ने की कितनी तमन्नाएं करते। और यहां हम किन चीजों में आगे बढ़ने की हौड़ लगी है दुनिया में, बाकी नेकियों की तरफ कितने लोग दौड़ते हैं वो सबको पता है। अक्सर को तो ये चाहिए कि मुझे सबसे पीछे वाली जगह मिले, नहीं, सबसे आगे बढ़ने की तमन्ना क्यों नहीं है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामूल ये था कि हज़रत उमर कहते हैं, मैं ढूंढ ढूंढ करके मदीने में कुछ ऐसी नेकी करना चाहता था जो अबू बकर नहीं करते, कहीं पर भी उनके बराबर हो जाऊं या उनसे आगे बढ़ जाऊं। बड़ी मुश्किल से हज़रत उमर को एक घर मिला, एक बूढ़ी औरत जिसका कोई नहीं रहता था। हज़रत उमर ने तय कर लिया कि इसके बेवा औरत है, इसके घर का सारा काम मैं कर दूंगा, किसी को पता भी न चले, नेकी का काम है। वो फजर में नमाज के बाद जाकर देखे तो उस औरत का सारा घर का काम पहले से किया हुआ है, जबकि वो बिस्तर से उठ नहीं पाती। उसके घर के बर्तन, उसका बिस्तर, सब कुछ साफ सुथरा है। दूसरे दिन आकर देखे वही हाल था। हज़रत उमर कहते हैं, तीसरे दिन मैं अजान फजर से पहले ही छुप कर देखना शुरू किया कि आखिर इसके घर का काम करता कौन है। कहा, एक चादर ओढ़े हुए एक शख्स आया, घर में दाखिल हुआ, झाड़ू लिया, झाड़ने लगा, सारी चीजें ढंग से रखने लगा। अजान होने लगी, वो उस औरत के घर से बाहर निकलने लगा। हज़रत उमर कहते हैं, मैं करीब जाकर चादर हटाया तो अबू बकर सिद्दीक थे। फिर कहा, एक ये मिसाल। हज़रत उमर कहते हैं, मैं कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता, मैं जहां कोशिश करता हूं उससे पहले हज़रत अबू बकर पहुंचे हुए होते। जब आपकी खिलाफत का वक्त था तब आपने ऐलान किया, हज़रत उमर फारूक ने, कोई ऐसी नेकी जो अबू बकर करते थे और मैं नहीं कर रहा हूं तो लोगों मुझे बता दो ताकि मैं बराबर हो जाऊं। किसी एक साहब ने खड़े होकर कहा, हज़रत अबू बकर जब खिलाफत करते थे उनके ज़माने में वो सबके हुकूक अदा करते, लेकिन रोज़ाना वो दोपहर के वक्त अपने हाथ में तोशादान लेकर जंगल की तरफ जाते और पता नहीं किसी कमज़ोर या कोई माजूर या मोहताज को खिला कर आते, लेकिन हमें ये नहीं मालूम किसको खिलाते थे। यह हज़रत अबू बकर का मामूल था। हज़रत उमर ने कहा, ये तो मुझे भी नहीं मालूम था, मैं कल से ही ये काम शुरू करता हूँ। दूसरे दिन हज़रत उमर ने अपने घर से तोशादान लिया, रोटी सालन, और लेकर उसी जंगल की तरफ चल पड़े। वहां किसको खिलाते थे क्या पता। दिन भर ढूंढते रहे, कोई मिले, कोई नहीं मिला। शाम का वक्त करीब आ रहा था, एक पहाड़ की चोटी में एक गार से किसी के जिक्र करने की आवाज आ रही थी। हज़रत उमर उस आवाज की तरफ लपक गए, दौड़कर जाकर देखा कि कोई है यहां पर मजबूर। अल्लाह अकबर, जैसी ही गार के अंदर नजर पड़ी तो देखा एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जिसके हाथ भी कटे हैं, पैर भी कटे हैं, और आंखों से भी बीना नहीं है, अंधा है, नाबीना है। इतनी माजूरी के आलम में अगर कोई बैठा हुआ है और गार में, तो हज़रत उमर कहते हैं, मुझे तो यकीन हो गया कि यही वो बंदा है जिसको हज़रत अबू बकर खिलाया करता था, इसका खाना वक्त का खलीफा खिलाया करता था। हज़रत उमर कहते हैं, मैं गया, चुपके से जाकर बैठ गया, मैंने आवाज भी नहीं की ताकि उस अंधे शख्स को यह मालूम भी ना हो कि कौन खिलाने आया है। आपने रोटी तोड़कर सालन में भिगोई और उस अंधे को मुंह में रोटी रखी।
जैसे ही उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा गया वो चीख कर कहता है, आने वाले, क्या अबू बकर का इंतकाल हो गया? कौन आया है आज खिलाने के लिए? हजरत उमर कहते हैं, तू अंधा है, नाबीना है, तुझे कैसे खबर कि आने वाला अबू बकर नहीं है? वो कहता है, इसलिए कि अबू बकर को पता था मेरे मुंह में दांत नहीं है, वो अपने मुंह से चबाकर मेरे मुंह में रोटी डालते थे। आज तूने पूरी रोटी उठाकर डाली तो मुझे समझ में आ गया कि आने वाला अबू बकर नहीं है, कोई और आया है। हजरत उमर की आंखों से आंसू आए, बाहर निकल कर कहते हैं, कसम रब्बे जुल जलाल की है अबू बकर, आपसे एक कदम भी मैं आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन थी तो दौड़, साबिकू इलल खैरात, जिसको अल्लाह ने फरमाया, यानी नेकियों की तरफ भागो, दौड़ो। आपके अंदर ये मुकाबला आराई अगर आ जाए, जिसको हेल्थी कंपटीशन कहा जाता है, इसमें हसद नहीं है, और अगर इसमें हसद भी हो तो नेकियों में है। रश्क जिसको कहते हैं, जिसको फरमाया गया हसद एक जगह जायज है, वो इल्म में, यानी इसको इतना इल्म है तो मैं और इल्म हासिल करूं। अगर कोई 2 रकात नमाज पढ़ रहा है तो आपके अंदर इस बात की तमन्ना जागनी चाहिए, मैं 4 पढ़ूं। नेकियों में दौड़ लगाओ। और आपको पता है सदका दिखा कर देना अफजल है कि छुपा कर देना अफजल है? सबको पता है छुपा कर देना अफजल है, नहीं, लेकिन ज़कात दिखा कर देना अफजल है। ज़कात को छुपा कर नहीं, दिखा कर देना अफजल है। क्यों? तुम जितना बांट रहे हो, दूसरों को भी तरगीब हो, उससे ज्यादा वो खैरात करेगा। इसलिए नहीं कि अपने दयालु होने का जिक्र करे कि मैं बहुत ज्यादा दानी हूं, मैं बहुत ज्यादा लोगों पर लुटाने वाला हूं, फैयाज हूं, सखी, इस नीयत से नहीं, बल्कि अगर 500 की नोट निकाल करके दिया तो इधर उधर जो लोग बैठे हैं उनके दिलों में ये शौक पैदा हो कि मैं 1000 दूं, क्योंकि इंसान की फितरत है, वो मुकाबला करता है, और ऐसे में मुकाबला करे तो बहुत अच्छी चीज है, ये कंपटीशन अच्छा है। और मैं इसी बात की तरगीब देता हूं नौजवानों को भी। क्या आप खुद दूसरों के मुतालिक बहुत सारी चीजें पूछते रहते हैं? बहुत सारी चीजें पूछते हैं, कितना कमाते हो, नौकरी कौन सी है, कौन सी कंपनी है, सैलरी कितनी, पैकेज कितना, ये सब सवालात हैं। और जब वो जवाब देता है, मेरी कंपनी फला है, तनख्वाह मेरी 50 से 70 हजार की है, और फिर सहूलियात क्या है, गाड़ी आती है, ले जाती है, छोड़ती है, ये सब सुनते हो, फिर दिल में ये तमन्नाएं जागने लगती हैं, मेरी तो 1 लाख होना चाहिए, मेरी कंपनी इससे बड़ी होनी चाहिए, मुझे भी ऐसी सहूलियात होनी चाहिए। ये जो तमन्ना तुम्हारे दिल के अंदर आई, तुम्हारे पूछने पाछने की वजह से ही आई। लेकिन मुझे बताओ, क्या अपने दोस्तों में किसी से कभी ये सवाल किया कितने खत्मे कुरान हुए? साल भर में कोई जुमेरात पीर का रोजा रखते हो? नहीं पूछते आप। ना आप उसकी तिलावत कुरान को पूछते हो, ना आप उसके रोजों को पूछते हो, ना आप उसकी नमाजों के मुतालिक। मेरे अजीजों, ये भी पूछते, अगर वो बंदा इबादतों में आगे है तो तुम्हारे दिल में भी ये तमन्ना आ जाती कि काश मैं भी इसकी तरह से और आगे बढ़ जाऊं। मैं ये बातें सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि रमजानुल मुबारका में आप सबका यही कंपटीशन हो जाए तो हर एक का रमजान बेहतर से बेहतरीन होगा। बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन होगा, बेहतरीन होगा। अजीजान गिरामी वक़ार, मुझे याद है बचपन में जब छोटे थे तो रमजान में रोजाना स्कूल जाने के बाद यही चीजें होती थी, तेरे कितने रोजे हुए, तेरे कितने रोजे हुए। हर एक के रोजे ही एक दूसरे को पूछते रहते। लेकिन आप, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा होता रहा होगा, सारे दोस्त जैसे 10 रमजान आ गए, 15 रमजान आ गए, हर एक को पूछते रहते हैं कितने हुए, कितने हुए। किसी के 7 हुए, किसी के 10 हुए, किसी के 12 हुए, और कोई कहता है पूरे हुए, अब तक के पूरे हुए। हम भी उस वक्त सुनते थे, एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन उस वक्त एक दौड़ रहती और घर में आकर झगड़ा भी करते, फलां के तो 10 हो गए, मुझे सहरी में जरूर उठाना, नहीं तो मैं उसके पीछे पड़ जाऊंगा, मैं उसका पीछे हो जाऊंगा। तो ये दौड़ कहां से आई? या आपसी माहौल से ही आई। यही एनवायरनमेंट हम चाहते हैं कि नेकियों में सबकत ले जाने का एनवायरनमेंट हो जाए, माहौल ऐसा हो, दौड़ लगे सिर्फ रमजान में नहीं, तिलावत कुरान में भी। मैं आपको बताऊं, आज तकरीबन 6 साल से ज्यादा का अरसा हो गया होगा हमारी जिक्र की महफिल को। इससे कबल मदीना जामा मस्जिद में भी जिक्र की महफिलें होती रही, उसके बाद फिर यहां पर
ایک ایسے بندے کو میں جانتا ہوں، ان پچھلے 6 سالوں سے لے کر آج تک ذکر کی ایک محفل بھی اس کی ناغا نہیں۔ اب تک جتنی محفلوں میں میں حاضر رہا اتنی محفلوں میں وہ بھی حاضر ہے۔ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ لوگ اپنے اپنے ریکارڈ بنانا چاہتے ہیں، کاش ان معاملات میں بھی کوئی ریکارڈ مینٹین کرے کہ میری یہ چیز مس نہیں ہونی چاہیے، میری یہ چیز برابر ہونی چاہیے۔ تو اس میں آپ کو اس قدر بلندیاں ہوں گی، جو صحابہ کا ماحول تھا وہ قائم ہو جائے گا۔ صحابہ کے درمیان یہی ماحول تھا۔ حدیث پاک میں ملتا ہے صحابہ کرام مسجد نبوی میں جمعہ کی نماز کے لیے جو آتے، پہلی صف کا ثواب ہے نا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف ایک بار یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہیں بتا دوں کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے، تو اس پہلی صف میں آنے کے لیے تم سب آپس میں تلوار بازیاں کرنے لگ جاؤ گے، جنگ ہو جائے گی تمہارے درمیان۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا تھا، لیکن تلواریں تو نہیں نکلتی تھی صحابہ کی۔ لیکن جمعہ کی نماز کے لیے جو صحابہ مسجد نبوی میں آتے تھے، جانتے ہیں وہ کب آتے؟ فجر کی نماز میں آ جاتے تھے۔ جو فجر کی نماز میں حاضر ہوا اسے جمعہ کی نماز پہلی صف میں ملی۔ تو یہ دوڑ تھی۔ اور اس کے علاوہ صحابہ کا معمول یہ تھا کہ وہ کسی چیز میں پیچھے نہیں رہنا چاہتے تھے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفلوں کو کاؤنٹ کرتے، کس نے کتنی محفل اٹینڈ کیا ہے، اس میں اس کی فضیلت بھی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کتنے کتنے سفر کیے، کس نے کتنے جنگوں میں شرکت کی، اسی اعتبار سے ان کے مقامات ہیں۔ کوئی صحابی ہیں جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 10 جنگوں میں شریک رہے، کوئی 12 جنگوں میں شریک رہے، اور کچھ صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے حضور کی ہر جنگ میں شرکت خود فرمائی۔ جتنے غزوات میں حضور تھے اتنے غزوات میں وہ بھی تھے۔ صحابہ ان کو اتنی قدر کی نگاہ سے دیکھتے اور کہتے ان کے مقام کو تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ ماحول ہو، ایک دوسرے پر سبقت لے جانا نیکیوں میں، یا بے حیائیوں کا دور دورہ ہے۔ یہاں پر اکثر نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ وہ آدھا بے حیا ہے تو میں پورا بے حیا بن جاؤں۔ نعوذ باللہ۔ دنیاوی اعتبار سے میں کمپٹیشن کرو گے، مقابلہ آرائی کرو گے تو ذلت کی طرف جاؤ، بہت زیادہ عمیق غار میں گر جاؤ گے۔ جانتے ہو آج کسی دکھاوے کے چکر میں، ریاکاری کے چکر میں پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، پورا معاشرہ برباد ہو رہا ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے کتنے کام ہو رہے ہیں آج جاؤ ہماری شادیوں کے محلات دیکھ لو، پارٹیاں دیکھ لو، تمہارے برتھڈے کی پارٹیاں دیکھ لو، یہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی بڑھوتری بیان کرنا اور اپنی بڑائی ظاہر کرنے کا یہ ایک ہی مقصد رہ جاتا۔ یعنی جنت بتائی جا سکتی کیسی ہے، حدیثوں میں معلوم ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ کر کے آئے تھے، بتائے میرے آقا نے، جہنم کے مناظر بتائے گئے کہ کیسے کیسے عذابات ہیں، بہت ساری چیزیں، قبروں کے حالات بھی بتا دیے گئے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک چیز ایسی ہے جس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، وہ موت ہے۔ وہ کیسے انداز میں آتی ہے؟ کیونکہ جس نے چکھ لیا وہ بتانے کے لیے آیا نہیں، جس کو آئی موت وہ دوبارہ آ کر بتایا کبھی نہیں کہ کیسے آتی ہے، اور جو پہلے سے بتایا ہے وہ یا تو پھر بزرگوں کی باتوں کو بتائے گا، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ ہمارے لیے یقینی ہے۔ سنیے، موت کے سلسلے میں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ قاری صاحب قبلہ کو ان کی جو موت ہے، کچھ ایسی موتیں ہیں جو شوق لگا دیتی ہیں۔ ویسے تو ایک شاعر نے بہت خوب کہا ہے، موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو یہاں آئے ہیں سبھی مرنے کے لیے۔ آئے تو سب ہیں مرنے کے لیے، لیکن کچھ موتیں ایسی ہیں جو ہلا دیتی ہیں، آدمی کو سوچ و بچار پر مجبور کر دیتی ہیں۔ یہ موت کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اسی لیے رکھا ہے کہ بندہ غرور و تکبر میں فرعون نہ بنے۔ آج پتہ ہے آپ کو، پورے یہودی اور جو نئی نئی ایجادات کرتے ہیں ان کے پیچھے ان کا وقت ایک بہت بڑا، جو میری اسٹڈی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو کیا لینا دینا ہے پوری دنیا کو، یہ جو نیو ورلڈ آرڈر جو کرتے ہیں کہ پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنانا ہے، ایک دنیا بنانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پورے گولڈ کو اپنے پاس رکھنا،
इकोनॉमिक पूरी ताकत को अपने पास रखना, बैंकिंग निजाम को अपने पास रखना, दुनिया की सारी हुकूमत को अपने पास रखना क्यों कर रही है एक छोटी जमात? क्यों करती है एक छोटी सी जमात? आपको पता है सालों पहले नमरूद के जमाने में ऐसा हुआ था कि यही कौम ने पूरी दुनिया में ऐसी हुक्मरानी की कि नमरूद को ये बात किसी ने बताई कि दुनिया की हर ताकत तुम्हें मिल गई है, कुछ भी कर सकते हो तुम। 1000 लोगों से वो तनहा लड़ सकता था नमरूद, और इंसानों पर तो ऐसी हुकूमत थी। लेकिन उससे मशवरा देने वालों ने कहा एक चीज तुम्हें नहीं मिली है, वो है मौत और हयात पर कंट्रोल। जब चाहे मरे कोई, जब तक हम चाहें जिंदा रहे, ये चीज। तो उसने कहा ये कहां है? कहा ये खुदा के पास। जैसे कि नबियों ने बताया है, नबियों पर ईमान नहीं था, लेकिन इतना था कि अल्लाह है, खुदा है और उसके पास ये ताकत है। तो जानते हो आप, उसने एक किला बनाया, बहुत बड़ा बुर्ज, बहुत ऊंची इमारत बनाई और पूरे इंसानों को जमा किया। तो बहुत बड़ी फौज, इसलिए कि खुदा से लड़ना है और खुदा से लड़ करके उसको गिरा देंगे और फिर मौत का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। आप सोचो, ये बहुत पहले हो चुका, बहुत पहले तारीख में। और उसने इमारत भी बनाई इतनी बुलंद कि आसमान तक लगने जाए। उस जमाने में उतनी तो बुलंद नहीं हो सकती थी, लेकिन बनाए अपने ख्यालात के एतबार से। और इंसानों को एक जुबान, एक करेंसी, सब कुछ एक कर दिया कि लड़ने का वक्त आए तो सारे इंसान मिलकर के खुदा से लड़ेंगे और ये पावर छीन लेंगे मौत और हयात का, अपने हिसाब से बांटेंगे कौन कितने साल जीने वाला है। जालिमों को जब ज्यादा ताकत मिलती है तो खुदा बनने का ऐसा ही गुरूर आता है। अल्लाह तबारक व तआला से लड़ने का ये फैसला किया। ये इस्राएली रिवायात में मौजूद है आज भी कि अल्लाह ने फरिश्तों में से एक फरिश्ते से कहा कि आओ देखो कि हमारे एक बंदे ने हमसे लड़ाई का मंसूबा बनाया है। एक फरिश्ते को भेजा, जाओ देख आओ। जिब्राइल, मिकाइल, इज़राइल, इसराफील अलैहिमुस्सलाम, बड़े फरिश्तों की नहीं, एक फरिश्ते को। वो फरिश्ता जमीन पर आया और सिर्फ पर हिलाया था तो उसकी पूरी इमारत धंस गई। जितनी फौज थी वो सब के सब मौत का शिकार हो गई और एक दूसरों की जुबानों को मुख्तलिफ कर दिया गया। ना इसकी जुबान उसे पता, ना उसकी जुबान इसको पता, सब जुबानें मुख्तलिफ कर दी गई। लेकिन एक प्लान था, एक मंसूबा था। आज के दौर में भी, तरक्कियाती दौर में, लोगों को ये लगता है ये जो छोटी जमात आज पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है, उसको ये तक, यहां तक जाना है कि स्पेस में जाए, कहीं तो जाए, एक बार अपनी ताकत से खुदा को जेर कर दे और मौत का पावर अपने पास ले ले। और कुरान में रब ताला ने फरमाया है, लै यखलुकु ज़ुबाबन वला इज्तमऊ लह, तुम सारे इंसान मिल करके एक मक्खी भी नहीं पैदा कर सकते, और मक्खी अगर मर जाए तो उसे जिंदा भी नहीं कर सकते। ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, कुरान में अल्लाह ने फरमाया कितनी कमजोर है तुम्हारी ताकत। इसीलिए मेरे अजीजों, मौत का जिक्र हम इसलिए करते हैं कि हमें हमारी कमजोरी पता चले, हमें हमारी हैसियत मालूम हो, हम कितनी हैसियत के हैं। एक ठोकर लगने पर मौत आ सकती, और कभी कभार बिल्डिंगों से गिरने वाला भी बच जाता है। ये सारा निजाम कुदरत है, अल्लाह ताला की तरफ से है। और मौत अच्छी और बुरी क्या होती है? अच्छी और बुरी क्या है? मुसल्ले पर इमामत करते हुए मौत आई, बज़ाहिर बहुत अच्छी मौत है। और अगर कोई एक्सीडेंट में मर गया, 40 टुकड़ों में हो गया, बहुत बुरी मौत लोगों के जहन में। ये कोरोना में मरने वालों को लोग बेचारे यही समझते थे कि क्या मौत है बेचारी, 4 लोग उठा नहीं पाते, रैप कर देते हैं प्लास्टिक में, और 4 लोगों की नमाज पे इसको तो दफन कर दिया जाता है, ऐसी मौत है वैसी ना। मरने के अंदाज को देख करके मौत को अच्छी और बुरी आप कंसिडर नहीं कर सकते। एक बात आपको मैं बताऊं, मौत अच्छी कौन सी है और बुरी कौन सी है, और जनाजे देख करके भी नहीं। जनाजे फूलों से सज जाएं, लद जाएं, हजारों की भीड़ हो जाए, ये भी मेयार नहीं, कसौटी नहीं अच्छी और बुरी मौत का। अच्छी और बुरी मौत क्या है? अगर गरीब आदमी तन्हा भी मर गया हो, ईमान पे मरा हो तो सबसे अच्छी मौत है। इश्क रसूल पे गया है तो सबसे अच्छी मौत है, और लाखों की भीड़ में कुफ्र पे मरा है तो सबसे बुरी मौत है। भीड़ लाखों की हो और कुफ्र पे मौत आई है तो वो सबसे बुरी मौत है। और ईमान पे मराओ, एक्सीडेंट हुआ हो
40 टुकड़ों में बदल गया हो, उसे चील कौवे खा गया हो, शेर खा गया हो, आग जला दी हो, पानी ने निगल लिया हो, कुछ भी हुआ हो, ईमान पे मरा है तो अच्छी ही मौत मरा है। ये बात याद रखें आप, ईमान पे मरा हो, इश्क रसूल के साथ गया हो, वो अच्छी मौत है। और बाकी अगर ईमान नहीं था मरने के वक्त, फिर चाहे जितने जलसे जुलूस हो जाए उसके, वो कोई अच्छी मौत नहीं। इसी तरह से ये भी कहा गया है, मदीने में मरने की तमन्ना सबकी होती है, लेकिन मदीने में मरने के बाद जो फजीलत है मदीने में मरने वाले की, वो ईमान के साथ मरे तो फजीलत, वरना मुनाफिकीन को जन्नतुल बकी से निकाल कर फेंक दिया जाता है। ये भी बात याद रखो आप, ईमान की हालत में जो दुनिया से गया और मदीने में मरा है, अरे उसके क्या कहने हैं। अरे वो क़यामत के दिन मोमिनीन की शफाअत करेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नतुल बकी के उस कब्रिस्तान से 70,000 लोग ऐसे निकलेंगे क़यामत के दिन, जिनमें से हर मैयत 70,000 की शफाअत करेगी। वो फजीलत है उनके लिए, लेकिन वो ईमान के साथ गया हो, इश्क रसूल के साथ गया हो। और इसीलिए हम तमन्ना भी करते अल्लाह ताला, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक व मौतन फी बलदी हबीबिक, अल्लाह तेरे रास्ते में हमें शहादत अता फरमा और तेरे नबी के शहर में मौत अता फरमा। अच्छा, एक साहब ने मुझसे सवाल किया था कि शहादत की भी तलब करते हैं और मौत मदीने में भी, तो इसका मतलब है जंग होना चाहिए मदीने में, जंग होगी, लोग मारेंगे तब शहीद होंगे। मदीने में जंग होगी, आप लड़ेंगे, आपको मारा जाएगा, आप शहीद होंगे, तब मदीने में मौत होगी। दोनों चीजें एक साथ कैसे आएंगी कि अल्लाह तेरे रास्ते में शहादत अता कर और मौत मदीने में अता कर, इसका मतलब जंग मदीने में होना चाहिए। सवाल मुझसे ये कहा, लेकिन मैं आपको बताता हूं मेरे अजीजों, हर शहादत जंग से ही नहीं होती। जो जंग में मर जाए सिर्फ वही शहीद नहीं, वो शहीद हकीकी है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शहीद की और भी अक़साम बयान फरमाई। हाँ, जो जुल्मन मारा गया वो भी शहीद है, लेकिन कई हादसे ऐसे हैं जिसमें इंतकाल किया हुआ वो भी शहीद है। और कितनी बड़ी प्यारी बात है, यहाँ पर शहजादे मुसन्ना मियाँ मौजूद हैं और हुजूर मुसन्ना मियाँ रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनको ये दुआ का मिसदाक कहा जा सकता है कि अल्लाह ने उनको शहादत भी अता की और मौत भी मदीने में अता की। दोनों चीजें मिली, एक है नेचुरल डेथ, तबाही मौत हुई हो, लेकिन एक है हादसाती मौत। कुछ हादसे ऐसे हैं जिस पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसे शहादत का मकाम है। तो शहीद भी हुआ हो मदीने में और मदीने में मौत भी मिली हो, ये बहुत कम लोगों को मिलता है, बहुत रेयर है। अल्लाह तबारक व तआला वो किस्मत हमें अता फरमाए। मेरे अजीजों, मौत का तज़किरा मैं सिर्फ आपके सामने इसलिए कर रहा हूं कि ये किसी को वक्त नहीं देती, किसी को मोहलत नहीं देती। इसीलिए आप ये मत समझना कि उम्र हो जाएगी, बाद में बच्चे जवान होंगे तो मैं दाढ़ी रख लूंगा, नमाज का पाबंद बन जाऊंगा। अरे 17 साल के जनाजे नहीं जाते क्या? 18 साल के जवानों के जनाजे नहीं देखते? बच्चों के भी जनाजे जाते हैं। मौत की कोई उम्र नहीं है। हाँ, जिसको बुढ़ापा मिल गया वो नेमत है, सबको नहीं मिलता बुढ़ापा। जिसको बुढ़ापा मिल गया और वो भी इस्लाम पे मिला है, उसके लिए वो नेमत है। बाज लोग ये कहते हैं ना, अरे बुढ़ा हो गया अब मस्जिद नहीं जाएगा तो और क्या करेगा, काम धंधा क्या है? तुम्हें नहीं पता, हर बूढ़ा मस्जिद वाला भी नहीं होता, उसके लिए भी फजले इलाही जरूरी है। हर बूढ़ा नहीं है मस्जिद का। कितने बूढ़े तो 80 साल के हो गए, अभी रोज ब्लेड मार रहे हैं, उनको अभी जवान बनने का शौक है रोज। और वो बूढ़ा जिसके बाल सफेद हो गए, हदीस पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस कुदसी, अल्लाह फरमाता है ऐसे बूढ़े को अजाब देने में मुझे हया आती, जिसका बुढ़ापा इस्लाम पे हुआ हो। लेकिन ये बुढ़ापा सबको नहीं मिलता कि हर कोई बूढ़ा होके मरेगा। कितने तो जवानी में चले गए। कारी खुर्शीद साहब इमामत कर रहे थे, मुश्किल से शायद उनकी 50 के आसपास की उम्र हो, 45-48 साल की उम्र, जबकि निजाम ये बताया गया 40 साल के बाद जवानी शुरू होती पहले। और कुरान पाक में जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलम्मा बलगा अशुद्दा, यानी ये जो शिद्दत वाली जवानी उसको 40 साल का आ गया। आप तमामी हजरात से मैं एक बात ये कहूंगा कि मौत की कोई उम्र नहीं है, तो फिर किस बात के इंतजार में हो कि कब करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। जो बात तुम्हें बाद में अचानक आने वाली है उसके लिए पहले से तैयार होना चाहिए। अपने आप को इतनी अच्छी हालत में रखो कि किसी दिन मलकुल मौत आए
تو ہاتھ پیر مار کر کے مہلت مانگنے والی نوبت نہ آئے کہ تھوڑا ٹائم مل جائے میں تسبیح پڑھ لوں، تھوڑا ٹائم مل جائے لوگوں کا کھایا ہوا واپس کر دو، تھوڑا ٹائم مل جائے قضا نمازیں پوری کر لو۔ ایسی حالت میں نہ آ جاؤ۔ اسی لیے ایک آپ کو میں بتا دوں، حدیث کا مفہوم ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کمپلیٹ رکھو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب پوچھا جائے۔ حساب اپنا کمپلیٹ رکھ لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب پوچھا جائے۔ اور موت سب کی ایک طرح کی بھی نہیں ہے۔ ایک بزرگ نے بڑی پیاری حکایت لکھی ہے کہ ایک بادشاہ سفر پر جا رہا تھا، شاہانہ کروفر ہے اور بہت سارے تفریح کے لیے نکلے ہوئی پوری جماعت ہے۔ اچانک راستے میں ایک فقیر آیا اور بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، آپ سے مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ میرے آرام کا وقت ہے، تفریح کا ہے، ابھی میں تو پکنک پہ جا رہا ہوں، کیا چاہیے تجھے بول۔ فقیر نے کہا نہیں نیچے اتر آؤ بگی سے، آپ سے مجھے بات کرنی ہے۔ بادشاہ نے کہا بڑا بدتمیز فقیر ہے یہ، بادشاہ کو اس کی بگی سے اتار رہا ہے۔ تو اس نے فوراً حکم دیا وزیروں کو پکڑو اس فقیر کو۔ فقیر نے اپنا جبہ ہوا کیا، کھولا اور اس کے بعد بادشاہ کو کھینچ کر نیچے اتارا اور کہا پہچان مجھے، میں ملک الموت اسرائیل ہوں، میں ملک الموت اسرائیل ہوں۔ بادشاہ اب وہ کپ کپانے لگ گیا، پوچھا کہ آپ کیوں آئے؟ کہا میں کیوں آتا ہوں تمہیں پتا ہے، روح لینے آیا ہوں۔ کہا اسی وقت؟ کہا اسی وقت۔ کہا اتنا وقت دے دیں کہ میں واپس چلا جاؤں یہ سفر کو ختم کر کے اور اپنی سلطنت کے سارے کام بیٹے کو سپرد کر دوں گا۔ کہا اتنا ٹائم نہیں ہے تیرے پاس، میں بہت جلدی، ابھی وقت کافی کم بچا ہے۔ تو اس نے کہا اتنی مہلت دے دیجئے کہ بیوی سے بات کر لوں۔ کہا وہ بھی نہیں ہے۔ اس کو تھوڑی سی بھی مہلت نہیں دی گئی، اسی وقت اس کو گرا دیا گیا اور اس کی روح قبض کر لی گئی۔ جو شاہانہ کروفر کے ساتھ جا رہا تھا اس کو راستے میں اچانک ملک الموت نے روح نکال دی۔ تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے سیم۔ ایک عالم ربانی ہے پرہیزگار، وہ اپنے گھر سے جھولا لے کر سامان لینے کے لیے باہر جلدی جلدی جا رہے ہیں، عصر کا وقت ہو چکا ہے اور سامان خریدنے کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں یہی فقیر آیا، کہا کہ حضور رک جائیے، تھوڑا کچھ بات کرنی ہے آپ سے مجھے۔ وہ عالم دین رک گئے اور کہا کیا بات ہے، جلدی جلدی بات کیجئے، مجھے گھر سے سودا لینے کے لیے، سامان لینے کے لیے جانا ہے اور گھر میں واپس پہنچا کر مسجد میں اذان ہو چکی ہے، جماعت سے نماز پڑھنی ہے، جلدی آپ بتائیے کیا بات ہے۔ فقیر نے کہا آپ نے نہیں پہچانا، میں ملک الموت اسرائیل ہوں۔ اس عالم ربانی نے جھولا پھینک دیا، جو سامان لانے کے لیے جا رہے تھے جھولا پھینک دیا اور کہا کہاں تھے آپ کے انتظار میں کتنی راتیں کٹ گئی، کیا آپ آئیں گے، روح نکالیں گے، میں رب سے ملاقات کروں گا۔ یہ دنیا میں جس کی روح اٹکی ہوئی ہے مال سے وہ مہلت مانگتا رہتا ہے، اور جو رضا الہی کے لیے جیتا ہے وہ ملک الموت کا استقبال کرتا ہے۔ آپ کہاں تھے؟ تو اب یہاں منظر بدلا ہوا ہے۔ ملک الموت نے کہا اتنی جلدی بھی کیا ہے آپ کو، آپ جائیے سامان خرید لائیے اور اپنے بچوں کو سامان دے دیجئے، گھر والوں کو کچھ وصیت کرنی ہے وہ بھی کر لیجئے۔ اس عالم ربانی نے کہا آپ کو جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا وہ کیجئے، آپ، میرے بچوں کا مالک اللہ ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، جس نے مجھے کھلایا وہ میرے بچوں کو بھی کھلائے گا، میرا یقین ہے، آپ اپنا کام کیجئے۔ ملک الموت وہاں مہلت نہیں دینا چاہتے اور ادھر کہہ رہے ہیں کہ اور کچھ ہے تو آپ کر لیجئے کام۔ پھر اس عالم ربانی سے کہا کہ اور کوئی آپ کی خواہش ہے؟ اس عالم ربانی نے کہا اگر آپ اتنا وقت لے کر کے آئے ہیں پہلے سے، اتنی مہلت لے کر کے آئے ہیں پہلے سے، تو خواہش اتنی ہے گھر نہیں جاؤں گا، اللہ کے گھر جاؤں گا، جس وقت نماز پڑھ رہا ہوں سجدے کے عالم میں جاؤں، آپ روح نکال لیجیے۔ کیسی خواہش تھی! اور اس عالم ربانی کے ساتھ ان کی خواہش کا خیال کیا گیا، وہ مسجد میں نماز کے لیے گئے اور سجدہ ریز ہوئے، ان کی روح قبض کر لی گئی۔ یہ سب کے ساتھ نہیں ہے کہ ہر کوئی چاہے تو اس کے ساتھ ہو جائے، ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے جیتے تھے، دنیا میں اس کی رضا کے لیے جیتے تھے، تو موت بھی اللہ تعالیٰ ان کی پسند کے حساب سے لیتا ہے۔ یہی تو بات ہے میرے عزیزو، موسیٰ علیہ السلام کی موت کے سلسلے میں جو حدیث ملتی ہے وہ یوں ہی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک عقیدہ بھی بتا کر کے جاؤں، تمہارا اور ہمارا جو دنیا سے جانے کا منظر ہے وہ الگ ہے، نبیوں کا مقام الگ ہے۔ نبیوں کی روح قبض کرنے سے پہلے ملک الموت اجازت لیتے تھے، تمہارے گھر میں اجازت نہیں لی جائے گی، ہاں انبیاء سے اجازت لی جاتی، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کا منظر تو بہت الگ ہی ہے۔ ملک الموت آئے تھے اور ان سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی موسیٰ،
आपकी रूह कब्ज करने के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है। उन्होंने एक तमाचा लगा दिया और कहा जाता है किसने, मूसा पैगंबर ने मलकुल मौत को, और उनकी आंख बाहर आई। वो वापस चले गए रब ताला के हुजूर और कहा है ला तूने किसके पास भेजा, उसने मार करके आंख बाहर कर दी। वो पैगंबराना जलाल था, किसी दूसरे को क्या मलकुल मौत छोड़ देते, और क्या किसी की हिम्मत थी। यहां यह अकीदा मुझे बताना है, वो खबीसों को समझना चाहिए जो नबी को अपने बराबर समझते हैं। कभी आप जो बराबर कहते बड़े भाई के तरह, हमारी तरह बशर थे, तुम भी मलकुल मौत को थोड़ा उंगली उठा के दिखाओ, पता चलेगा तुमको कहां पहुंचा दिया जाएगा। वो नबी की शान है, अल्लाह अपने महबूबों को यह ताकत दिया हुआ। अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया कि निजाम में खलल हो गया, नहीं, रब ताला ने फरमाया ए इजराइल जाओ दोबारा और एक घने बालों वाला बकरा लेकर जाओ और उनसे कहो कि इस बकरे के जिस्म पर हाथ रखें, उनके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे उतनी उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी, उतनी जिंदगी उनको दी जाएगी। दोबारा इजराइल आए और मूसा अलैहिस्सलाम के पास बकरा पेश किया, कहा आप इस पे हाथ रखिए, आपके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे उतनी उम्र आपकी बढ़ा दी जाएगी। दूसरा कोई हो तो कहता है ना कि 1 साल बढ़ गया तो चले ठीक है, 10 साल बढ़ जाएंगे ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हट जाओ, मैं रब से बात करता हूं। अल्लाह करीम से आपने कलाम किया और कहा अल्लाह जब इतने साल भी गुजर जाएं तब क्या होगा। रब ने फरमाया मौत आएगी, इसलिए कि मेरा वादा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान वाली चीज को मौत का मजा चखना है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या फरमाया, मौत तो आएगी, जितने साल भी हो गुजर जाए मौत आएगी। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जब मौत आना ही है तो अब क्या तब क्या। फिर इजराइल से कहा कि मुझे बैतुल मुक़द्दस के करीब कर दो। जमीन को लपेट दिया गया, आपको दम जदन में बैतुल मुक़द्दस के करीब कर दिया गया। वहां पर एक कब्र खोदी जा रही थी, उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लेटे और कहा इजराइल से कि अब मेरी रूह कब्ज कर लो। ये शान है नबियों की कि हर एक की मौत इस तरह से नहीं आती है, कुछ मौतें वो हैं, इसीलिए मौत में भी दर्जात हैं।